Hello students, this is the 7th lecture on topic magnetic materials. In last lecture we discussed about diamagnetism, what is the origin of diamagnetism and properties shown by diamagnetic substances. In today's lecture let us discuss about paramagnetism and ferromagnetism. Now what is paramagnetism? See, while reading we will discuss it. Substance which develop feeble magnetization in the same direction of magnetizing field are called paramagnetic substances. कैसे रहता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. Unpaired electrons are present but very few in number, right? So when such a substance is kept in an external magnetic field, so in a paramagnetic substance dipole moment is developed. Dipole moment develop is very weak, and because dipole moment develop is very weak, but the dipole moment develop is in the direction of external magnetic field, and that is why paramagnetic substance has a tendency to move weak part of the magnetic field to the strong part of the magnetic field, right? Okay, यहाँ देखो, substances which develop feeble magnetization in the same direction of magnetizing field are called as paramagnetic substances. Such substances are weakly attracted by the magnet and tend to move from weaker part of the field to the stronger part of the field. मतलब कैसे कुछ स्टूडेंट है क्लासरूम में बैठे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज उनको पढ़ने का मूड नहीं, बट व्हेन दे सीट इन अ क्लास they have a weak tendency to learn the content, right? So compared to diamagnetism, diamagnetic student कैसे थे, उनको पढ़ना ही नहीं था, so they always oppose the process of teaching also. ये student कैसे रहेंगे, उनको पढ़ने का नहीं है, but they do not oppose the process of teaching, and as long as they are in a classroom they have a weak tendency to learn, to participate in the process of learning, right? Okay. Atoms and molecules of non-zero magnetic dipole moment. अभी इनका जो डाइपोल मोमेंट है शुरू में ही ये नॉन जीरो रहता है. क्यों नॉन जीरो रहता है? बिकॉज दे पजेस लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट या स्पिन डाइपोल मोमेंट कैंसिल करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. सो दे पजेस नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. तो जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उनके पास थोड़ा टेंडेंसी रहता है मैग्नेटाइज होने का, राइट? दैट इज अ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ये कुछ एग्जांपल्स है, दे बिहेव लाइक द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, क्राउन ग्लास, पेपर, सॉलिड, मैग्नीज, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम एंड टंगस्टन. इसका ओरिजिन क्या रहेगा? देखो मैं ओरिजिन यही से पढ़ता हूं. इन एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज आई टोल्ड. सो ईच एटम possess non-zero and permanent dipole moment because of the lone pair electron. क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट रहे वो किसी के साथ कैंसिल नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट each atom of paramagnetic substance possesses non-zero dipole moment. अभी क्या होगा देखो, अगर आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो क्या बिहेवियर दिखाएगा वो पहला देखते हैं. इन द absence of external magnetic field, each atom of paramagnetic substance possesses net dipole moment. Because of thermal agitations, these dipole moments are randomly oriented and hence net dipole moment of paramagnetic substance is what? Zero. ये पहला डायग्राम देखो. इसमें ये जो एरो है, these are the arrows. These arrows are representing dipole moment vector of each single atom. ये एक एटम का डाइपोल मोमेंट है, एक एटम का डाइपोल मोमेंट है. सो डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड.
and they remain randomly oriented because of continuous changes in temperature. अगर आपको इस सब्सटेंस का नेट डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो इन सब का वेक्टर सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड दैट वेक्टर सम इज कंसीडर्ड 0. यानी इन द absence of external magnetic field they do not show any magnetic behavior though they are having lone pair electrons, right? ये पहला पार्ट हो गया. फिर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इज व्हाट? वीक. मैंने सेकंड डायग्राम में ये एरो दिखाया, देखो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इस एरो का जो लेंथ है छोटा लिया. लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मैंने छोटा लिया है तो मानो वीक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सोचो. In the presence of weak external magnetic field, what happens? The dipole moments of atom are partially aligned in the direction of field. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जितने डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट उस डायरेक्शन में थे, they tend to align in that direction. ये देखो जैसे ये था, ये था, ये था, ये ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में थे तो उनका अलाइनमेंट थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा सेकंड्स में, लेकिन ये टेम्पररी फेज है. कंप्लीट अलाइनमेंट इज प्रिवेंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. मैंने आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक्सप्लेन किया था पोलराइजेशन का कंसेप्ट में. कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस होते रहते हैं. वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दे आर अबाउट टू अलाइन, बट देयर अलाइनमेंट इज नॉट परमानेंट बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस आर नॉट अलाउइंग देम टू रिमेन अलाइन विद द टाइम. ओके, ये दूसरा पार्ट में होता है. हाँ, अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो देखो मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वेक्टर बड़ा दिखा है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन किया है. तो या थर्मल एजिटेशन डोमिनेट हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड थर्मल एजिटेशंस को डोमिनेट करके सभी डायपोल मोमेंट्स को परमानेंटली अलाइन कर देती है. सो दे ऑल आर अलाइन. ये होता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एट अ लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर लो रखोगे so they do not possess the magnetic potential energy due to temperature changes. टेम्परेचर कम रखोगे तो अलाइनमेंट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट? ओके. द डायपोल मोमेंट्स ऑफ एटम्स आर कंप्लीटली अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और ये अलाइनमेंट इजी होता है क्योंकि टेम्परेचर कम रखा है तो टेम्परेचर की वजह से जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब रहते हैं वो रिड्यूस हो जाता है. द स्पेसिमेन thus possess the maximum and net dipole moment like this. ये कब पॉसिबल है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोलराइजेशन कब होता है? जब आप टेम्परेचर कम रखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रखोगे तो अलाइनमेंट जल्दी होता था पोलर मॉलिक्यूल्स. वैसे ये भी है. इन द hence the specimen shows a tendency to move from weaker field to the stronger field. So they have a tendency to move from weak part of the magnetic field to the strong, but not to a greater extent. एक feeble रहता है, weak रहता है. The alignment of atomic dipoles is temporary. ये temporary phase है. जैसे आप external applied magnetic field निकाल दोगे तो alignment disturb हो जाएगा, या आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा. तो क्लियरली यहाँ का पैरामैग्नेटिक जो फीचर्स है दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे तो भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने वाला है. तो यहाँ का जो अलाइनमेंट है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. Hence the specimen shows the tendency to move from weaker field to the stronger field. The alignment of atomic dipoles is temporary, right? If the external magnetic field is switched off, alignment disturb हो जाएगा, substance demagnetize हो जाएगा. या आपने टेम्परेचर भी बढ़ाएगा तो भी demagnetize हो जाएगा क्योंकि alignment disturb हो जाएगा. ये आपको प्रिपेयर करना है 3 मार्क के लिए, 1 2 3. डायग्राम में ध्यान रहे, नो मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ये बी वेक्टर का लेंथ बढ़ाने का.
अभी प्रॉपर्टीज देखो, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उसी सीक्वेंस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का भी प्रॉपर्टीज होगा, राइट? इसीलिए पढ़ते समय 3 कॉलम बनाने का, डाई का, पैरा का और फेरो का, क्योंकि पैरा और फेरो का प्रॉपर्टीज सेम होता है, खाली पैरा के प्रॉपर्टीज वीक लेवल पे होते हैं और फेरो के प्रॉपर्टीज थोड़े ज्यादा सेंसिटिव या स्ट्रॉन्ग लेवल पे होते हैं, इतना ही फर्क, राइट? इसके प्रॉपर्टीज वही सीक्वेंस है जो डाई का था। इन द absence of external magnetic field, net magnetic moment of paramagnetic substance is zero, क्योंकि डायपोल मोमेंट्स है हर एटम के पास, बट ड्यू टू रैंडम मोशन नेट डायपोल मोमेंट हमें जीरो ही लेना पड़ता है। ये पहला प्रॉब्लम। उधर भी जीरो ही था, उधर मतलब बाय डिफॉल्ट जीरो था, यहाँ हर एक के पास है लेकिन रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से वेक्टर सम जीरो, ये फर्क है। When paramagnetic substance is kept in external magnetic field, develops feeble magnetization in the direction of magnetizing field. वहां पे क्या था? feeble magnetization in opposite direction of magnetic field था, डाई में या in the direction। मैं simultaneously उधर का आपको रिवाइज करके दे रहा हूं। The rod made of paramagnetic substance kept in uniform magnetic field rotate and come to rest parallel to the direction of magnetic field. डायमैग्नेटिक रॉड अगर रहेगा तो वो परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होता था, पैरामैग्नेटिक रहेगा तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होता है। When rod of paramagnetic substance is kept in non-uniform magnetic field, it moves from weaker part to stronger part of the field. डायमैग्नेटिक में क्या था? फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट था, उल्टा था। The rod made of paramagnetic substance is kept in a magnetic field. ये लाइंस ऑफ फोर्स को कुछ हद तक पास होने देता है, मतलब दिस सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड टू सम एक्सटेंट। मतलब क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो ये लर्निंग प्रोसेस पे लो लेवल पे असिस्ट करते हैं, दो दे आर नॉट इन अ मूड टू लर्न, बट लर्निंग प्रोसेस को ये असिस्ट करते हैं। ये ऐसे भी कुछ स्टूडेंट का ग्रुप होता है क्लासरूम में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या था? वो लर्निंग प्रोसेस को भी अपोज करते हैं, सो दे डू नॉट अलाउ द मैग्नेटिक लाइंस टू पास थ्रू इट्स कंटेंट, मतलब वो लर्निंग प्रोसेस को अपोज करते हैं, कंप्लीटली डिस्टर्ब करते हैं क्लास। ये वैसे नहीं है, ये लर्निंग प्रोसेस को लो लेवल पे असिस्ट करते हैं और पढ़ते भी है, तो ये टीचिंग प्रोसेस को थोड़ा सा असिस्ट करते हैं। सो दे अलाउ द लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू देयर कंटेंट, मतलब इनके लिए परमिएबिलिटी है थोड़ा सा। अगर आप एन और एस पोल ऑफ द बार मैग्नेट लेते हो, थोड़ा गैप रखते हो, on that gap keep the watch glass and in watch glass take a paramagnetic liquid। अगर n और s पोल में गैप बहुत कम रहेगा तो ये जो पैरामैग्नेटिक लिक्विड है ये मिडल में इलेवेट होता है, क्योंकि मिडल में हाइट फॉर्म होता है, क्योंकि मिडल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। डायमैग्नेटिक लिक्विड का उल्टा था, इस सिचुएशन में डायमैग्नेटिक लिक्विड मिडल में डिप्रेस होता था और साइड में स्प्रेड होता था। पैरा के लिए मिडल में एलिवेट होता है, साइड में डिप्रेस होता है। हाँ, अगर आप एन और एस पोल में गैप बढ़ा दोगे तो मिडल में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, तो ये मिडल में एलिवेट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मिडल में एलिवेट हो जाएगा और साइड में एलिवेट हो जाएगा। डाई का उल्टा था, डाई में क्या होता था? फिर मिडल में एलिवेट होता था, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वीक होता था, इसलिए एग्जैक्टली उसका उल्टा। If paramagnetic liquid is taken in a U-tube and one arm of the U-tube is U-shaped tube, is introduced in a magnetic field, तो उस आर्म में पैरामैग्नेटिक लिक्विड का लेवल रेज होता है, डायमैग्नेटिक लिक्विड का लेवल नीचे जाता था। If paramagnetic gas is introduced in a uniform magnetic field, तो ये गैस जो है स्प्रेड होता है पैरेलल टू द फील्ड। डायमैग्नेटिक कैसे स्प्रेड होता था? परपेंडिकुलर टू द फील्ड।
ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला। ये ससेप्टिबिलिटी का हम लोगों ने जहाँ कंसेप्ट पढ़ा था वहां पे भी मैंने ऐड करके रखे, खाली रिवीजन पर्पस यहाँ पे भी। तो यहाँ का ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगा, स्मॉल बट पॉजिटिव। डाई का था क्या, डाई का क्या था, स्मॉल था लेकिन निगेटिव था, क्योंकि वो अपोज करता है, ये असिस्ट करता है लो लेवल पे। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज व्हाट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, दैट इज व्हाई द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन, क्योंकि ये कुछ हद तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंटेंट में से पास होने देता है। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फिजिकल स्टेट में अवेलेबल है, लाइक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसमें जो ससेप्टिबिलिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशो I/H, susceptibility, it is inversely proportional to what, absolute temperature. I repeat, absolute temperature, temperature expressed in Kelvin. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम क्यों होता है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होता है, राइट, दैट इज व्हाई. So these all are the properties of paramagnetic substances. In the next lecture, we will discuss about the ferromagnetic substances and its behavior. Thank you.